Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had finished poem 4, Foreign Lands by Robert Louis Stevenson. I had completed all the exercises of the poem. And I'm sure all of you must have completed those exercises in your English notebook. Now, students, today I'm going to start with lesson 9, the priceless slippers. So all of you, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 87. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 87 as I'm going to start with lesson 9, the priceless slippers. Students, you must have heard about many saints and Sufi saints also. As India is a land where many great saints and Sufi saints were there. Fine. And they are known for their austerity. And this lesson is also about a Sufi saint whose name was Hazrat Nizamuddin Aulia. Now students, before I start this lesson, I would like to explain the word meanings of this lesson. So, students, the word meanings I'll be explaining and writing on the board. Please take out your English notebooks and start writing the word meanings of this lesson. If I explain the word meanings, it will be easier for you to understand the lesson when I read and explain. So, first of all, I'm going to write and explain the word meanings. The first one, students, is mystics. Mystics is a person who attempts to be united with God through prayer. Now, the first word, student, is mystics. And mystics is a person who attempts to be united with God through prayer. बेटा, कितने साधे, बहुत सारे हमारे कंट्री में साधु संत और पीर हुए हैं, है ना? पीर फकीर हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रेयर्स के कारण गॉड के साथ वो मिल गए हैं, है ना? इट सीम्स कि मतलब वो प्रेयर्स के थ्रू डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट करते थे. फाइन. और ये जो मिस्टिक्स हैं ये भी गॉडली पर्सन्स, है ना, कि लाइक यू कैन से मैसेंजर ऑफ गॉड ऑन अर्थ, है ना, उस तरह के ये लोग हैं जिन्होंने अपने ध्यान से, पूजा पाठ से, वो कहते हैं कि वो गॉड के साथ यूनाइट हो गए हैं. फाइन. So, mystics, a person who attempts to be united with God through prayer. मतलब उन्होंने इतने ध्यान से meditations और prayers, तपस्या, पूजा पाठ उन्होंने इतनी की है कि वो भगवान के साथ एक हो गए. So,
mystics, a person who attempts to be united with God through prayers. Then the second word is Sufi saint. Sufi saint, and the meaning of Sufi saint is a person belonging to a specific group and who leads a simple life without any comforts or luxuries. बेटा जो सूफी सेंट हैं, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे पीर बाबा लोग हुए है ना, और वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के होते हैं, है ना, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के होते हैं और वो बहुत सिंपल लाइफ, है ना, एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं विदाउट एनी कंफर्ट्स और लग्जरी. कंफर्ट्स एंड लग्जरी जो ऐशो आराम. बेटा जो रियल में संत होगा, साधु होगा, पीर फकीर होगा, वो कभी भी लग्जरीज और कंफर्ट्स में नहीं रहेगा. साधु वो जो अपना जो लाइफ है एकदम सिंपल तरीके से. आजकल जो आप बाबा और सबके बारे में सुनते हो तो आप देखते हो वो फ्लाई करते हैं, दे हैव गॉट लग्जरी कार्स, है ना, दे स्टे इन एसी रूम्स, है ना, एंड उनके बहुत महंगे महंगे शौक और शानो शौकत होते हैं. लेकिन जो असली का जो संत होगा, सेंट होगा, है ना, वो हमेशा सिंपल लाइफ लीड करेगा, एकदम सिंपल लाइफ जहां उसको कोई ऐशो आराम की सुविधा नहीं होगी, है ना. जो असली सेंट होगा वो मेडिटेट करेगा, भगवान में रहेगा, वो कंफर्ट और लग्जरी में कभी नहीं रहता. तो ये जो सूफी सेंट्स हैं बेटा जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के थे और जिन्होंने अपनी बहुत सिंपल लाइफ वो जीते थे. मतलब ऐसा नहीं कि उनको सारे ऐशो आराम मिल सकते थे, भाई जो गॉडली पर्सन है वो तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वो एकदम सिंपल लाइफ विदाउट एनी कंफर्ट एंड लग्जरी के वो जीते थे. सो ये सेकेंड वर्ड सूफी सेंट, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप and who leads a simple life without any comfort or luxuries. Now, I hope all of you have written, students, the two word meanings. Now I'm going to erase and write the third one. The third word meaning is austerity beta. Austerity means living without comforts luxuries or decorations. ऑस्टेरिटी मतलब एकदम सादा जीवन, कोई भी कंफर्ट, कोई भी ऐश और आराम, है ना. कंफर्ट और लग्जरी कहते हैं आराम का साधन नहीं, लग्जरी मतलब कोई भी ऐश का साधन नहीं.
और डेकोरेशन, कोई भी डेकोरेशन, वेदर क्या उनके पहनावे में हो, उनके क्लोथिंग में हो, वेरी सिंपल, है ना, मोस्ट ऑर्डिनरी, है ना। आप देखते हो जो असली साधु या फकीर होता है वो बहुत साधारण होता है, आप मतलब, और वो एकदम सिंपल कपड़े, वो कुटिया में या झोपड़ी में रहते हैं ना, कुछ भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है। सो दैट इज नोन एज ऑस्टेरिटी, कि विदाउट लिविंग विदाउट, वो ऐसी जिंदगी जीते हैं, बिकॉज वो तो भगवान की प्रेयर में पूरे समय उन लोग मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान के भजन करते, प्रेयर्स करते हैं, तो उनको ना तो आराम की सब सुख सुविधा की जरूरत है, ना किसी लग्जरी ऐश की जो सारी चीजें, जैसे हम लोग हैं, हमको फैन भी चाहिए, गर्मी लगती है तो कूलर भी चाहिए, है ना, विंटर्स आते हैं तो हमको एसी हीटर सब चाहिए, ब्लोअर चाहिए, है ना। बट ये जो साधु संत है ये इन सारी चीजों से दूर है ना। उनके पास मतलब कोई भी ऐशो आराम का कोई साधन नहीं, कोई भी डेकोरेशन की चीजें नहीं, है ना। हमको लगता है अरे ये ड्रेस अच्छी है, ये बेडशीट अच्छी है, ये कर्टन्स अच्छे, ये सब डेकोरेशन के लिए हम कई चीजें रखते हैं, बट जो असली साधु संत है वो एकदम सिंपल सादा जीवन उनका रहता है, जो ऐसा जीवन जीते हैं जिनमें कोई ऐशो आराम या सजावट का नहीं, एंड दैट इज नोन एज ऑस्टेरिटी। The fourth word is divine. Divine means holy, related to God. जिसको हम कहते हैं ना बहुत ही पाक पवित्र है, that is holy. Something related to God. Divine. Divine, holy. Then the fifth word is desperation. And desperation means होपलेसनेस, है ना, कि मतलब कोई भी उम्मीद ही नहीं बची हो, है ना, एकदम होपलेसनेस को क्या बोलते हैं बेटा, डेस्पेरेशन। फाइन, कोई भी उम्मीद नहीं, एकदम चारों तरफ से नाउम्मीद हो जाना, है ना, कि मतलब कोई आशा ही नहीं बची, निराश हो जाना, एंड दैट इज नोन एज डेस्पेरेशन। देन the sixth word is afford. A-double-F-O-R-D, afford, which means didn't have any money to pay for. अफोर्ड करना मतलब पैसे ना होना कोई भी चीज को खरीदने के लिए, है ना। सो अफोर्ड मीन्स डिडंट हैव एनी मनी, कि पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं होना कोई भी चीज को खरीदने के लिए, किसी भी चीज को खरीदने के लिए वी नीड मनी, और पास में पैसे नहीं होना कोई भी चीज खरीदने को, दैट इज अफोर्ड। देन द सेवेंथ वर्ड इज recounted. And recounted means told again, फिर से कहना, recounted told again, recounted told again. So again I'm repeating, austerity means living without comforts, luxuries or decorations. The fourth word is divine, which means holy. The fifth word is desperation, which means hopelessness. The sixth word is afford, which means didn't have any money to pay for. The seventh word is recounted, and recounted means told again. I am sure all of you must have written these words in your English notebook, students. Fine. Now I am going to erase pen and write the eighth word meaning. The eighth word, student, is woes. W-O-E-S, woes. And woes means
worries, troubles. जितनी भी हमारी परेशानियां और चिंताएं हैं, है ना, जो भी हमारे दुख का कारण है वो हमारे वोज हैं, है ना। जितनी भी हमारी चिंताएं और परेशानी हैं उनको क्या बोलते हैं? वोज, है ना। जो भी दुख के कारण है वो वोज, है ना। वरीज एंड ट्रबल्स, वोज, वरीज एंड ट्रबल्स. Then the ninth word is attired. A-T-T-I-R-E-D. Attired. Attired means dressed. जो भी पहनावा है उसको क्या बोलते हैं? Attired. Attired means dress. Attired means dressed. Attired means dressed, जो पहनावा है. Then the 10th word is assured. And assured means promised. वादा करना. Assured means promised. वादा करना. Fine. Then the 11th word is adamant. The 11th word is, students, adamant. A-D-A-M-A-N-T, adamant. And adamant means refusing to be persuaded or to change one's mind. मतलब एक बेटा एडमेंट मतलब एक बार जो सोच लिया फिर उस पर अड़े रहना, है ना। किसी की भी बात नहीं सुनना. जो सोचा है नहीं, बस वो तो जिद पे अड़े रहना, है ना. कोई भी बात सोच ली उस पे अड़े रहना. जनरली जिद पे अड़े रहने को हम एडमेंट बोलते हैं. रिफ्यूज टू बी परसुएडेड, कितना भी उनको आग्रह करो बट वो अपनी बात जो उन्होंने कह दी मतलब कह दी. सो जिद पे अड़े रहने को, है ना. कोई कितना भी समझाए अपना जो डिसीजन है उसको चेंज नहीं करना. दैट इज नोन एज एडमेंट. जिद पे अड़े रहना, किसी के कितने भी आग्रह पे अपना डिसीजन नहीं चेंज करना, दैट इज नोन एज एडमेंट. फाइन. सो एडमेंट मीन्स रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड. परसुएशन करना मतलब आग्रह करना. हम किसी को जोर देते हैं ना कि प्लीज प्लीज मान जाओ, बट यहाँ पे रिफ्यूज मतलब कितना भी मान मनोबल कर लो वो अपने डिसीजन से चेंज नहीं करेंगे. ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एडमेंट. जो जिद पे अड़े रहते हैं. दे कैन नॉट चेंज देयर माइंड. हाउएवर यू परसुएड देम बट दे आर डिटरमाइंड कि वो जो उन्होंने किया तो वो. तो सच काइंड of people, they are known as adamant. Then the 12th word is patiently. And patiently means calmly or quietly. एकदम शांति से, है ना, पेशेंस के साथ, है ना, बिना हड़बड़ाए हुए. दैट इज नोन एज पेशेंटली मीन्स कामली और क्वाइटली. फाइन. सो नाउ अगेन I'll revise and then I'm going to erase it. 8th word is woes. Woes means worries or troubles. जितनी भी चिंताएं और परेशानी है वो woes. The 9th word is attired. Attired means dress, जो पहनावा है. The 10th word is assured. Assured means promised. 11th word is adamant. Adamant, refusing to be persuaded or to change one's mind. जो मतलब अपनी बात पे अड़े रहना, उससे जरा भी टस से मस नहीं होने को क्या बोलते हैं? एडमेंट. And the 12th word is patiently. Patient means calmly or quietly. So now I'm going to erase and write
the 13th word. The 13th word is summon. Summon means to call. जो कहते हैं ना बुलावा आया है तो समन करना, टू कॉल. बुलावा आने को क्या बोलते हैं? समन, टू कॉल. देन द 14th वर्ड इज impatient. And impatient means irritable. मतलब बिल्कुल भी पेशेंस ना होना, जल्दी से इरिटेट हो जाना. सो दैट इज नोन एज इम्पेशेंट, है ना. बिल्कुल बेसब्र हो जाना. पेशेंस को हम हिंदी में सब्र बोलते हैं, और जो बिल्कुल किसी भी चीज के लिए मतलब अभी तुरंत हो जाना चीज, सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज इम्पेशेंट. बेसब्र हिंदी में जिसको बोलते हैं बेटा, बेसब्र. एंड द 15th word is worn out. Worn out means used and almost torn. है ना. कोई भी चीज जब उसका बहुत ज्यादा यूज करो, है ना, क्लोथ्स हो सकते हैं, शूज, स्लीपर्स हो सकते हैं, तो वो यूज करते करते, पहनते पहनते घिस जाते हैं, है ना. बस फटे जैसे पुराने, घिस के फटे, मतलब लगभग फटे हुए, है ना, कि कभी भी उनमें छेद हो सकता है. ऐसे को क्या बोलते हैं? वर्न आउट, है ना. यूज्ड एंड मतलब एकदम घिसे हुए, है ना, कि कभी भी आप देखते हो पुराने जो कपड़े बहुत आप पहनते हो वो बहुत जल्दी फट जाते हैं, है ना. जो शूज, स्लीपर्स वगैरह होते हैं ना, पहनते पहनते शूज के सोल वगैरह में छोटा सा छेद होने लग जाता है कि कभी भी वो फट सकते हैं. तो ऐसे को बोलते हैं बेटा वर्न आउट, घिसे हुए, पुराने. देन the 16th word is galloping. Galloping, galloping. Galloping means moving at a very fast पेस. पेस मतलब बेटा स्पीड, बहुत स्पीड में मूव करना. द स्पीड ऑफ अ हॉर्स. जनरली बेटा जो घोड़े पे बैठ के बहुत तेज मूव, जब घोड़ा बहुत तेज भागता है उसको हम गैलपिंग बोलते हैं. द स्पीड ऑफ अ हॉर्स, है ना. घोड़े पे बैठ के बहुत फास्ट सवारी करने को जनरली गैलपिंग बोलते हैं. सो मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस. पेस मीन्स स्पीड, है ना, बहुत तेज स्पीड में मूव करना. द स्पीड ऑफ अ हॉर्स, जैसे घोड़ा कितना तेज भागता है ना, तो घोड़े पे बैठ के बहुत तेज घुड़सवारी, जनरली उसको हम घोड़े की स्पीड से कौन सा वर्ड हम करते हैं? गैलपिंग, है ना. घोड़े की स्पीड, द स्पीड ऑफ द हॉर्स रिलेट्स विद द वर्ड गैलपिंग. Now, the 17th word is stammered. STAMMERED. Stammered means speaking with sudden unwanted pauses, usually out of nervousness.
स्टैमर्ड मीन्स स्पीकिंग विथ सडन अनवांटेड पॉजेस, है ना। कभी कभी हम हकलाने लगते हैं, और कब हकलाते हैं, जब हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। घबराहट के मारे हम अटक अटक के, रुक रुक के बोलते हैं, है ना। और ये कब होता है, जब हम बहुत घबरा जाते हैं, ना। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर के सामने टीचर हमसे क्वेश्चन पूछता है, हम घबरा जाते हैं ना, और हम घबराहट के मारे अटक अटक के बोलते हैं। उसको हम अटक अटक के, घबराहट के मारे रुक रुक के बोलना, अटक अटक के बोलना, है ना, बोलने में लड़खड़ा जाना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैमर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, स्टैमर्ड। स्टैमर्ड मीन्स स्पीकिंग विथ सडन अनवांटेड पॉजेस, यूजुअली आउट ऑफ नर्वसनेस। नर्वसनेस मतलब घबराहट के मारे जो अटक अटक के बोलना, है ना, उसको स्टैमरिंग बोलते हैं। सो द 13th word is summon. Summon means to call, बुलावाना. The 14th word is impatient, and impatient means irritable, जो बेसब्र होता है ना, बेसब्र बौखलाया हुआ इंसान, उसको क्या बोलते हैं, impatient. The 15th word is worn out, used and almost turns, एकदम घिसा पिटा. 16th word is galloping, moving at a very fast speed, the speed of a horse. The 17th word is stammered, and stammered means speaking with sudden unwanted pauses, usually out of nervousness. घबराहट के मारे अटक अटक के, रुक रुक के बोलने को क्या बोलते हैं बेटा, stammer. So now I'm going to erase these words and write the 18th word. And the 18th word is reverently. Reverently means respectfully. बहुत ज्यादा आदर करना, सम्मान करना, इज्जत करना, उसको क्या बोलते हैं, respectfully. Reverently, respectfully. Reverently, respectfully, बहुत ज्यादा आदर और सम्मान करने को reverently बोलते हैं. Then the 19th word is robes, and robes means coat, है ना, जो ऊपर से, कपड़ों के ऊपर से लॉन्ग कोट टाइप जो पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, robes. Robes means coat. Then the 20th word is astounded. A-S-T-O-U-N-D-E-D. Astounded. Astounded means shocked or greatly surprised. Astounded means एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, है ना. शॉक्ड एकदम, मतलब किसी चीज जो सोचा ना वो हो जाए तो एकदम आदमी शॉक हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाना. और आश्चर्यचकित हो जाने को क्या बोलते हैं बेटा, astounded. Now the 21st word is readily. Readily means immediately, तुरंत, बिना देर किए हुए, है ना, that is known as immediately. Readily, immediately. Then the 22nd word is devout. Devout means devoted, एकदम भक्त होना, है ना, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना, दैट इज नोन एज डिवोटेड, है ना. तो डिवाउट मीन्स डिवोटेड, पूरी तरह से समर्पित कर देना. देन द 23rd वर्ड इज ह्यूमिलिटी. Humility
means humbleness. जरा भी घमंड नहीं होना. That is known as humbleness. जरा भी घमंड नहीं होना. जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, he was the president, he was a great scientist, though he was very humble. उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था. वो कभी भी उन्होंने अपने साइंटिस्ट होने का या प्रेसिडेंट होने का शो ऑफ नहीं किया. दैट इज नोन एज हम्बलनेस, है ना. बिल्कुल भी घमंड नहीं होना. फाइन. सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दीज वर्ड्स मीनिंग आफ्टर रिवाइजिंग एंड राइट द रिमेनिंग 2 वर्ड मीनिंग्स. रेवरेंटली, रिस्पेक्टफुली, आदर सम्मान के साथ. रोब्स, कोट. 20th word is astounded. Astounded means shocked or greatly surprised. The 21st word is readily. Readily means immediately. The 22nd word is devout, and devout means devoted. पूरी तरह से समर्पित होना, भक्त होना. The 23rd word is humility, and humility means humbleness, जिसको जरा भी घमंड न हो. Now the 24th word. The 24th word is disciple. Disciple, शिष्य, है ना. स्टूडेंट, जो गुरु का जो स्टूडेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिसाइपल, है ना. शिष्य, पहले जमाने में गुरु लोग होते थे और गुरु के जो शिष्य होते हैं उनको डिसाइपल बोलते हैं, है ना. स्टूडेंट भी बोलते हैं, बट द करेक्ट स्टूडेंट तो विद्यार्थी को बोलते हैं, है ना. और जो भी कोई अपने गुरु से कुछ भी सीखता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिसाइपल, स्टूडेंट. एंड देन द लास्ट वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन इज इन्वेंटर. इन्वेंटर मतलब क्रिएटर, जिसने कोई भी चीज क्रिएट की हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंटर. सो इन्वेंटर इज creator. Inventor, creator. So students, with this I have written and explained the 25 word meanings of lesson 9, the priceless slippers. Please write these word meanings in your English notebook and please silently read lesson 9, the priceless slippers, twice, so that when I read and explain the chapter, you will understand it easily. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.